Hello, my dear friends. Welcome back to the lecture series of Judicial Examination. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. In today's lecture, we will discuss Section 159 to Section 163 of Criminal Procedure Code 1973, which is a part and parcel of Chapter of Investigation by Police. So in what manner the investigation will be done under these particular section we will discuss in today's lecture. तो आज का हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, 4 सेक्शन हम डिस्कस करने वाले हैं, सेक्शन 159 से लेकर सेक्शन 163 तक। इसके पूरा कंसेप्ट, पूरा सिनेरियो हम डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे इन पर पूछे गए क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चंस जो एग्जामिनर इन पर्टिकुलर टॉपिक्स पर पूछ सकता है। सो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। Investigation by police, section 159 to 163. So power to hold investigation or preliminary inquiry, section 159. So after receiving the report under section 158, the magistrate may direct the investigation or depute any magistrate subordinate to him to hold preliminary inquiry. So whenever any magistrate receiving any report from the police officer under section 158, the magistrate is having a power to direct the investigation or depute any magistrate subordinate to him to hold a preliminary inquiry. तो जब कभी भी मैजिस्ट्रेट के सामने सेक्शन 158 में अगर पुलिस की रिपोर्ट आती है रिलेटिंग टू एनी ऑफेंस, कैसा ऐसा ऑफेंस हुआ है, तो वो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, डायरेक्शन देगा इन्वेस्टिगेशन का, कि पुलिस ऑफिसर को डायरेक्शन देगा कि इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करो, या अपने सबऑर्डिनेट मैजिस्ट्रेट को वो डिप्यूट करेगा कि उसको डिप्यूट करेगा काहे के लिए, टू होल्ड अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, कि भाई ऐसा कुछ हुआ क्या, ऐसा कोई ऑफेंस हुआ क्या, इसकी इंक्वायरी करने के लिए मैजिस्ट्रेट अपने सबऑर्डिनेट मैजिस्ट्रेट को डिप्यूट कर सकता है। सेक्शन 159 पे प्रोबेबल क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज दैट under section 159 of CRPC, a preliminary inquiry into the commission of offense can be conducted by the magistrate having jurisdiction to take cognizance by any magistrate subordinate to the magistrate having jurisdiction under the order of such magistrate by the police only A and B. तो अगर हम देखें तो only A and B is a correct answer. तो बाय द मैजिस्ट्रेट हैविंग जुरिस्डिक्शन टू टेक कॉग्निजेंस, कि जो मैजिस्ट्रेट को कॉग्निजेंस लेने का जुरिस्डिक्शन है वो खुद भी इंक्वायरी कंडक्ट कर सकता है, या प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, या वो मैजिस्ट्रेट अपने सबऑर्डिनेट को भी डिप्यूट कर सकता है इंक्वायरी कंडक्ट करने के लिए। सो ओनली ए एंड बी इज अ करेक्ट आंसर। नाउ सेक्शन 160 ऑफ CRPC, police officer power to require attendance of witnesses. So any police officer making an investigation by order in writing require the attendance before himself of any person being within the limits of his own or any adjoining station who appears to be acquainted with the facts and circumstances of the case, and such person shall attend as so required. So the police officer during the investigation is having a power to issue a notice to attend the police station. The police officer is having a power under section 160 to issue a notice to any person to attend a police station. काय के लिए? The person who is acquainted with the fact of that particular case. तो सेक्शन 160 में पुलिस ऑफिसर को पावर है, पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है, किसी पर्सन के अगेंस्ट में नोटिस इशू कर सकता है और उसको कह सकता है कि आपको पुलिस स्टेशन में आना है। कैसे, कौन से पर्सन को? ऐसे पर्सन को जो पर्सन के पास उस केस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। तो अगर उस केस से रिलेटेड किसी पर्सन के पास इंफॉर्मेशन है तो उसको पुलिस ऑफिसर नोटिस इशू कर सकता है पुलिस स्टेशन में आने के लिए। समझ रहे हो? दैट इज द पावर गिवन टू पुलिस ऑफिसर। तो नो मेल पर्सन अंडर एज ऑफ 15 एंड अबव 65 ईयर और वुमन or mentally or physically disabled shall be required to attend at any place other than the place of such person resides. So suppose if the police officer cannot call any male person whose age is
below 15 years, whose age is above 65 years. Police officer cannot call any woman or any mentally or physically disabled person to police station. If the police wants to inquire, if the police wants to ask any question to such a person, the police must conduct that particular क्वेश्चन एंड आंसर सेशन इन द प्लेस वेयर दोज पर्सन रिसाइड्स। समझ रहे हो कि अगर पुलिस को अगर किसी ऐसे पर्सन से जिसकी एज 15 साल से नीचे है या जिसकी एज 65 साल से ऊपर है या कोई वुमन या कोई मेंटली और फिजिकली चैलेंज्ड अगर कोई पर्सन है, इससे अगर कोई पूछताछ करना है तो पुलिस ऑफिसर ऐसे पर्सन को पुलिस स्टेशन में नहीं बुला सकता, बल्कि पुलिस ऑफिसर उसके घर में जहां वो रहता है वहां पर जाकर उससे पूछताछ कर सकता है। तो जनरल प्रोविजन है सेक्शन 160 का कि पुलिस ऑफिसर को यह पावर दिया हुआ है कि ऐसा पर्सन जो केस के बारे में जानकारी रखता है, पुलिस ऑफिसर उसको नोटिस इशू कर सकता है और उसको पुलिस स्टेशन बुला सकता है पूछताछ के लिए। लेकिन पुलिस ऑफिसर 15 साल से नीचे जिसकी एज है, 65 ईयर्स से ऊपर जिसकी एज है, वुमन है या फिजिकली और मेंटली डिसेबल पर्सन है, उसको पुलिस स्टेशन नहीं बुला सकता, बल्कि पुलिस ऑफिसर को अगर उससे पूछताछ करनी भी है तो उसके घर पर जाकर पूछताछ करना पड़ेगी। द स्टेट गवर्नमेंट में बाय रूल्स मेड इन दिस बिहाफ प्रोवाइड for the payment by the police officer of reasonable expenses of every person attending under subsection 1 at any place other than his residence. So the state government may, by rules made in this behalf, provide for the payment by the police officer of reasonable expenses of every person attending under subsection 1 at any place other देन हिज रेसिडेंस। तो अगर पुलिस ऑफिसर किसी पर्सन को उसके घर के अलावा दूसरे प्लेस पे बुलाता है पूछताछ के लिए, तो उसके घर से दूसरे प्लेस पे आने के लिए जो खर्च लगने वाला है, रीजनेबल एक्सपेंसेस लगने वाले हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट वो प्रोवाइड करेगा किसके जरिए? पुलिस ऑफिसर के जरिए। पुलिस ऑफिसर को उसका पेमेंट करना पड़ेगा। स्टेट गवर्नमेंट ने इसका प्रोविजन किया है। उत्तराखंड जुडिशियल एग्जामिनेशन 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है सेक्शन 160 पर, अ पर्सन कैन बी समन्ड एज अ विटनेस अंडर सेक्शन 160 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 बाय एनी पुलिस ऑफिसर, एनी ऑफिसर, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफ पुलिस ऑफिसर, स्टेशन हाउस ऑफिसर। तो अगर हम देखें तो एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन, द वर्डिंग स्टार्ट्स एनी पुलिस ऑफिसर, सो द करेक्ट आंसर इज any police. So investigating police officer, जहां पर हमने देखा कि एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन, वर्ड क्या है? एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन। तो जो पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उसी को पावर दिया गया सेक्शन 160 के हिसाब से। सो इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर इज अ करेक्ट आंसर। प्रोबेबल क्वेश्चन है, द पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ अ पर्सन एक्वेंटेड विद द फैक्ट and circumstances of the case under section 160 of CRPC requires notice by telephone, notice in writing, either A or B, both A and B. तो अगर हम देखें कि any police officer making an investigation by order in writing, तो notice in writing is a correct answer. Another probable question, the investigating officer under section 160 of CRPC cannot require the attendance at a place other than the place of residence of a male whose age is under the age of 18 years, a male who is under the age of 16 years, a woman either A or B or C. तो हमने देखा कि यहां पर दिए वाला है नो मेल पर्सन अंडर द एज ऑफ 15 एंड अबव 65 ईयर्स ऑफ वुमन। तो द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अंडर सेक्शन 160 ऑफ सीआरपीसी कैनॉट रिक्वायर द अटेंडेंस एट अ प्लेस अदर देन द प्लेस ऑफ रेसिडेंस। तो अ वुमन इज अ करेक्ट आंसर, क्योंकि 18 साल का पर्सन है तो उसको बुला सकता है, 16 साल का है तो भी उसको बुला सकता है, 15 साल से अगर नीचे है तो उसको नहीं बुला सकता। तो यहां पर करेक्ट आंसर है अ वुमन। नाउ सेक्शन 161 एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय पुलिस। So any police officer making an investigation may examine orally any person supposed to be acquainted with the facts and circumstances of the case. So the police officer while making an investigation is having a power to examine any person who is acquainted with the fact and circumstances of that particular case. तो अगर कोई investigating officer है
केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान उस पुलिस ऑफिसर को पावर है कि वो ऐसे पर्सन को जो केस के बारे में जानकारी रखता है उसको एग्जामाइन कर सकता है, ओरली और इन राइटिंग। समझ रहे हो? Such person shall be bound to answer all questions other than questions the answer to which would expose him to a criminal charge or to a penalty or forfeiture. So whenever the police asking any question to such a person who is acquainted with the fact and circumstances of the case, it will be the duty of that person to answer all the question other than question the answer to which would expose him to a criminal charge or to a penalty or forfeiture. जब कभी भी पुलिस ऑफिसर ऐसे पर्सन को क्वेश्चन करेगा जो केस के बारे में जानकारी रखता है तो उस क्वेश्चन को आंसर करने की उस पर्सन की जिम्मेदारी होगी, उसका जवाब देना ही पड़ेगा। सिर्फ वो क्वेश्चन का जवाब देने के लिए वो बंधन कारक नहीं है। ऐसे क्वेश्चन जो क्वेश्चन का आंसर जब देगा तो उसकी क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज हो सकती है। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो उसका आंसर देने के लिए वो बाउंड नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को छोड़ के बाकी जितने क्वेश्चन होंगे उसका सबका आंसर उस पर्सन को देना पड़ेगा। Subsection 3 of section 161, the police officer may reduce into writing any statement made to him in the course of an examination under this section. So whenever the police officer examining any person who is acquainted with the fact and circumstances of the case, police shall reduce that information into writing. समझ रहे हो कि जो पर्सन कह रहा है, जो पर्सन केस के बारे में जानकारी रखता है, वो जो जो कहेगा पुलिस ऑफिसर उसको लिख कर लेगा। समझ रहे हो? रिड्यूस इनटू राइटिंग। नाउ सेक्शन 161 पे प्रोबेबल क्वेश्चन है, उत्तराखंड जुडिशियल एग्जामिनेशन 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, स्टेटमेंट्स अंडर सेक्शन 161 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 आर रिकॉर्डेड बाय द पुलिस ड्यूरिंग ट्रायल, बिफोर इन्वेस्टिगेशन, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, ड्यूरिंग इंक्वायरी। तो अगर हम देखें तो एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन, सो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इज अ करेक्ट आंसर। सो सेक्शन 161 में पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान पर्सन का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकता है। प्रोबेबल क्वेश्चन है, सेक्शन अंडर सेक्शन 161 ऑफ सीआरपीसी, द इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर हैज पावर टू एग्जामाइन ओरली any person acquainted with the fact and circumstances of the case. The expression any person acquainted with the fact and circumstances of the case includes accused, does not include accused, refers to the prosecution witnesses only, both B and C. So it includes accused also, क्योंकि he is also acquainted with the fact and circumstances of the case. तो यहां पर accused भी include हो रहा है इस particular question में। Now section 162, statement to police not to be signed, use of statement in evidence, section 162. So no statement made by any person to a police officer in the course of an investigation under this chapter shall, if reduced to writing, be signed by the person making it. Suppose if the police officer recorded a statement of any person who is acquainted with the fact and circumstances of the case under section 161, and if that particular person denied to sign that particular statement, that particular statement may be treated as a एविडेंस। समझ रहे हो? तो वो स्टेटमेंट अगर सेक्शन 161 में अगर पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड कर रहा है, स्टेटमेंट अगर लिख कर लेता है पुलिस ऑफिसर, क्वेश्चन करता है किसी पर्सन को और वो पर्सन का स्टेटमेंट अगर वो लिख कर लेता है और बाद में वो पर्सन मना भी करता है उस स्टेटमेंट पे सिग्नेचर करने के लिए, तो सिग्नेचर जरूरी नहीं है, विदाउट सिग्नेचर भी वो स्टेटमेंट ही रहेगा और वो कोर्ट में पेश किया जा सकता है। नॉर शैल एनी सच स्टेटमेंट बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस, ना तो वो किसी दूसरे पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। नाउ नो इंड्यूसमेंट to be offered, section 163. No police officer or other person in authority shall offer or make or cause to be offered or made any such inducement, threat or promise as is mentioned in section 24 of Indian Evidence Act 1872. So while making an investigation, while recording the statement of any witness or any person, police officer shall not offer or make any inducement, threat or promise to the person. तो जब कभी भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, ना तो पुलिस ने उस पर्सन को उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए डराना धमकाना चाहिए, ना तो उसको कोई प्रॉमिस करना चाहिए, ना तो कोई उसको बहलाना फुसलाना चाहिए। तो ये सेक्शन 1
But no police officer or other person shall prevent by any caution or otherwise any person from making any statement which he may be disposed to make of his own free will. अगर फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्सन अपनी फ्री विल से खुद से अगर कोई स्टेटमेंट दे रहा होगा तो वो स्टेटमेंट पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड कर सकता है। पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी नहीं है कि उसको ये सावधान करे कि भाई तूने नहीं भी दिया तो चलेगा। अगर वो खुद से फ्री विल से अगर दे रहा होगा तो पुलिस ऑफिसर उसको रिकॉर्ड कर सकता है, लेकिन पुलिस ऑफिसर धमका के किसी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं कर सकता है। अगर करेगा पुलिस ऑफिसर किसी को धमका के उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड तो इट अमाउंट्स टू अ वायलेशन ऑफ सेक्शन 163। ये सेक्शन 163 का उल्लंघन कहलाएगा। सो सेम स्लाइड वापस आ गया। सो दीज आर द पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय police which we have discussed. I hope you understand this topic. If you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button and share this video with your friends. Thank you very much.